अच्छा अच्छा, मेरे अभी वो अंदर रूम में है, मैं रूम में ले जाऊंगी तो नेट नहीं चलेगा मेरा। गुड आफ्टरनून। 2 year old, 2 year old। अच्छा 45 डेज का था तब लेकर आए थे लॉकडाउन में हम लोग उसको। हाँ, ओह गुड। लॉकडाउन में तो चाहिए ही। हाँ, एक्चुअली मैं तो कभी नहीं लाती, मुझे पसंद नहीं है डॉग को लेके आना, प्यार करना, बट बच्चों को सबको पसंद है तो इट्स ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट लेकिन अब घर में आने से आपको अटैचमेंट हो ही जाता है। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. Good afternoon. प्रिंसी मैम, Good afternoon. Good morning. Good afternoon. morning. Good morning. Good afternoon. Good morning. सबको विदेश Good देख के morning. बहुत खुशी हो रही है। अपने Yes, अपने ma'am. वीडियोस ऐसे ऑन लग कर रहा है लीजिए। बड़े दिनों बाद मिले मैम। बड़े दिनों बाद। हाँ, मैं सैटरडे को भी ज्वाइन नहीं कर पाई, मेरे लिए 2 हाँ। दिन हो गए पूरे। मैंने तो 3 पेजेस लिखे हैं प्रेम के ऊपर। वाओ, भेजिए ग्रुप में। हिंदी में है, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा हिंदी में। नहीं, हमें आएगा। तो समझ में हमारी आएगी। मातृभाषा है ना वो। आशमी मैम ने कहा ना, यू शुड लव हिंदी। प्रेम की Yes. पतंग में विश्वास की डोर को बांधकर आसमान को छू सकते हैं, इतनी ताकत होती है। वाह 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 वाह, सुपर सुपर। पूरा भेज दीजिएगा इसमें, इसके अंदर। जरूर जरूर मैम जरूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्रिएटिविटी है मैम सब आ में। गए ममता जी, आ गए आज आपका होमवर्क पूछने के लिए। अभी उठे ये सो के, अभी हाँ। उठे। सही है। 1:30 बजे नहीं, 2 बजे तक थोड़ा सो जाती हूँ, मुझे लगता है आधा घंटा फ्रेश होके। वो आपका चेहरा बता रहा है कि आप सो के उठे हो। अब ठीक है, अब फ्रेश है। चलो, पीक स्टेट से सबकी नींद उड़ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। चलो, लेट्स स्टार्ट। I'm eating, ma'am. I'll join in 10 minutes. Hands faster Yes. and faster. Okay, so चल, let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, faster. Yes, fast. Fast, Come on, everybody. faster. Yes. Do it. Come on, fast, Yes, faster. you can do it. Yes. We can do it. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. We all are the And you winners. say to yourself, I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. Let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Go on, run faster. Faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Fast, Yes, come on, everybody. fast. Yes, come on, fast. Come See on. yourself Yes, winning. Yes. Faster. Come See on. yourself Still faster. co-creating your life Yes. perfectly, Come on, faster. Yes, come on, fast. You the can do way it. you Come on. want it to be. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on, you're the winner. I'm the winner. Come on, faster. Yes. I'm the winner. Okay. Wonderful. I'm the Stop. Thank you. Yes, I'm the winner. And now, Yes, I'm the winner. yes, Yes, I'm the winner. Yes, I'm the winner. I am the winner. I'm the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I will. I I must. will. I must. I can. I will. I must. Thank you so much. बाकी सब लोगों ने वीडियोस के मुंह बंद रखे। नीता जी, प्रिया, मनविंदर जी, श्वेता, भाविनी। Okay, now let's spread our hands toward the universe and say,
I am open and receptive for all the goodness and abundance in the universe. I am worthy of a very meaningful, fulfilled life. I am worthy of love, prosperity, harmony, peace, perfect and radiant health. I deserve all the goodness and abundance in the universe because I am child of God. Thank you, universe. Thank you, universe. Okay, so let's start our gratitude prayer now. Before we start, let's thank our money that has been given all throughout our lives. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the money that I have been given throughout my life. अगर कल के दिन में आपने जो भी कुछ भी कहीं पे पैसे दिए हैं तो उसके लिए भी आप अभी सोच के उसके लिए भी आप अंदर ही अंदर थैंक्स बोल सकते हो. Thank you for all the money that I have been given throughout my life. पूरे दिन में या इतने दिनों में आपने जो भी खर्च किए होंगे वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और पास्ट के पूरी लाइफ के लिए जो पैसे मिले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Okay, so now let's start our gratitude prayer. Let's do it. एक सेकंड में सबको म्यूट कर देती हूँ बीच बीच में फिर. ओके. Okay, let's start. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you for this beautiful, amazing life, which is full of love, peace, harmony, which is full of joy, bliss, happiness, worthiness, fulfillment, prosperity, wealth, and success, perfect and radiant health and strength. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for this one more day to be alive. Thank you. ये ह्यूमन योनि में जन्म देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you that we all are here together praying this gratitude prayer together. ये बहुत बड़ी एक नियामत है हम सब के लिए कि आज हम सब साथ में इकट्ठा होके आपकी तरफ ये ग्रेटिट्यूड की प्रेयर कर पा रहे हैं. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. The gift of health is keeping me alive. आज मैं alive हूँ, जिंदा हूँ. मेरे पास इतनी बड़ी नियामत है जो हेल्थ की नियामत है. उसकी वजह से आज मैं अपने जीवन का बहुत अच्छे से मजा उठा पाती हूँ. हर एक चीज का मजा ले पाती हूँ अपनी ये हेल्थ की वजह से. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी बॉडी हमेशा मेरा बहुत साथ देती है. हमेशा मुझे हर एक चीज में उसने आज बचपन से लेके आज तक मेरा बहुत साथ दिया है. उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. मेरे ये हाथों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी मैं आपके सामने ये हाथ दोनों जोड़ के खड़ी हूँ. ये दोनों हाथ हमेशा हर एक चीज में किसी को अगर ब्लेसिंग देनी है तब भी ये हाथ यूज होते हैं. अगर किसी को कुछ हीलिंग करनी है तब भी यही हाथों का इस्तेमाल होता है. यानी ये हाथ ना ही सिर्फ मुझे स्किल्स देते हैं सब काम करने की, बट यही हाथ इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी कर सकते हैं दोनों हाथ. तो मेरे पूरे दोनों हाथों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
मेरे शोल्डर्स जो इतना सारा बोझ उठा पाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपर आर्म लोअर आर्म्स जो है, मेरी जो एल्बो है उसकी वजह से मैं दोनों हाथों को कहीं पे भी किसी भी तरह मोड़ सकती हूँ। उनके साथ जो भी मुझे काम करने हैं मैं इजीली कर पाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथों में पैरों में जो बोन्स है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उंगलियों के अंदर छोटे छोटे से बोन्स है, बट वो इतना इतना कुछ ज्यादा वो काम कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उंगलियों के लिए, मेरी हथेली के लिए, मेरे रिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो काम मेरे हाथ कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि कोई भी मैं ऐसा कोई और पार्ट वो काम नहीं कर सकता है। इतने यूनिक तरीके से हर एक चीज बॉडी में आपने बनाई है भगवान, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। Thank you for my hands. Thank you for my fingers, fingernails. Thank you. Thank you so much for my wrist. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for my legs. ये thighs के लिए, knees के लिए, जो calf है उसके लिए, जो मसल्स है मेरी पूरी बॉडी में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मसल्स अपने हिसाब से स्ट्रेच होते हैं, वापस जितना काम करना होता है उस तरह से वो मसल्स एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं एवरी डे। इतना मैं इस्तेमाल करती हूँ और जितना यूज करती हूँ उतना ही वो और एफिशिएंट होते जाते हैं और ज्यादा एफिशिएंसी से काम करने लगते हैं। वो कितनी अद्भुत बात है कि जितना यूज करते हैं इतना ही वो और ताकतवर और स्ट्रेंथफुल होते जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे मसल्स, बोन्स, नी का जो मेरा जॉइंट है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो जॉइंट फ्लूइड जो मेरे अंदर होते हैं, जो जॉइंट सारे जॉइंट्स के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे जॉइंट्स को हमेशा एक स्ट्रेंथ, एक ताकत देता है, मुड़ने की शक्ति देता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लेग्स के लिए, मेरे फीट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे टो नेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे एंकल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो स्किन हर जगह पे अलग अलग तरीके से मेरी स्किन बनी हुई है, जैसे हथेलियों के अंदर की स्किन डिफरेंट है, फीट के अंदर स्किन डिफरेंट है, मेरे तलियों की स्किन जो है बहुत मोटी स्किन बनाई है कि इवन बिना चप्पल के भी कहीं पे भी चले तो भी वो सारा कुछ वो सहन कर सकती है, वो पूरा वो बोझा उठा सकती है। ऐसी आपने स्किन बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इतने अच्छे से बनाने के लिए और ये धरती पे सारी चीजें करने के लिए सक्षम जो कैपेबिलिटीज के साथ मुझे आपने भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यारी बॉडी जो कितनी अच्छी एक टेम्पल की तरह है ये मेरी बॉडी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी स्किन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हर एक पार्ट, मेरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स में मेरी स्किन का पूरा डिफरेंट डिफरेंट रोल है, वो दिखने में भी डिफरेंट है, उसका टेक्सचर सब कुछ हर जगह पे अलग अलग है। स्किन का भी एक नहीं बट 4-5 लेयर होते हैं। उस सारे स्किन के लेयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्किन के अंदर, जो मुझे इतना कुछ देती है। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं माँ बनी थी मेरा पूरे स्किन स्ट्रेच हुई थी और वो वापस अपनी सही जगह पे चली गई, या वापस डिलीवरी के बाद। ये सारी चीजें मिरेकुलस नहीं है तो और क्या है। इतनी मिरेकुलस स्किन देने के लिए, इतनी मिरेकुलस बॉडी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मेरे एक एक कार्टिलेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो ईयर्स के अंदर या मेरे नोज के अंदर जो है वो कई सारा, उनका भी बहुत बड़ा पार्ट है मेरे बॉडी के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आईज, मेरी आईब्रोज, मेरे फोरहेड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे बहुत सुंदर बनाते हैं। एक मेरा गर्व होता है मेरे बाल, उसके लिए एक अलग तरह का प्राउड होता है हमारे अंदर कि हाँ, हमारे इतने अच्छी स्किन है, इतने अच्छे बाल है, जो हमें दिखने में भी सुंदर बनाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारा कुछ इतना मिरेकुलस है लाइफ में कि मिरेकल्स को और कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बॉडी के ऊपर देख लो तो ही इतने सारे मिरेकल्स हमें दिख जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बॉडी आपने, इतनी ब्यूटीफुल मार्वेलस जो बॉडी आपने हमें दी है, बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ विच इज कीपिंग मी अलाइव। ये गिफ्ट के लिए बहुत बड़ी नियामत है, ये जो मेरा हेल्थ का जो गिफ्ट है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये धरती पे जन्म दिया, जो मुझे यहाँ ये धरती पे लेके आए, पाल पोस के बहुत अच्छे से बड़ा किया, मेरी हर एक जरूरियातों को पूरा किया। कितने साल में उनके साथ पली बड़ी, उनके साथ मैंने बिताए, वो सारे पलों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सारे बेहतरीन पलों के लिए शुक्रिया जो मैंने मम्मी पापा के साथ बिताए, मेरे भाई बहन के साथ बिताए, वो सारे पल, वो सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much. Thank you for all the money that I have been given throughout my life. कितना कुछ मैं पैसों के साथ कर सकती हूँ। ये पैसे हमेशा मुझे अपने खुद के लिए तो काम आते ही है, किसी दूसरों की भी मैं मदद कर पाती हूँ। ये बहुत बड़ी नियामत है हम सबके लिए कि हम चैनल बन के किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं। हम धरती पे आए ही इसलिए है कि एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके, एक दूसरे को लेके साथ में चल सके। ऐसे बोलते हैं कि एक एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, बट जब उसके पास पूरी टीम होती है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यस, ये पूरी मेरी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आज हम इतना कुछ कर पा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए। जो करना पड़ रहा है हम लोग करते हैं साथ में मिलके। ये पूरी हमारी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये प्यारी सी जर्नी में हमें लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जर्नी में हमारा हाथ पकड़ के हमें सही दिशा दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो गाइडेंस, वो सपोर्ट, जब कभी भी हम गिर जाते हैं वापस हमें आप उठाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द 5 एलिमेंट्स, जिससे ये हमारी बॉडी भी बनी हुई है। जो हर एक जगह पे धरती पे ये 5 एलिमेंट्स ही मौजूद है। ये प्यारी सी सुंदर हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हवा कितना कुछ कर सकती है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है जो हमें मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो पानी पी के हमारी ना ही सिर्फ प्यास बुझती है, बट वो पानी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पानी के बिना हर एक चीज जो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हर एक चीज के अंदर पानी बसा हुआ है। वो हर एक चीज पानी के बिना संभव नहीं थी कि वो प्रोड्यूस हो पाए, वो बन पाए। तो पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फायर एलिमेंट का भी इतना ही बड़ा हाथ है सब चीजों के लिए। मेरी ये बॉडी इतने अच्छे से रन इसीलिए कर पाती है क्योंकि
फायर एलिमेंट मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर, जो 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होता है 37, वो टेम्परेचर के बिना हमारी बॉडी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों ही चीजें हमारी बॉडी को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ये जो फायर एलिमेंट है, जो परफेक्ट टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होता है ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाए, हमारे जो 100 ट्रिलियन सेल्स है वो अच्छे से काम कर पाए। उसी तरह से पानी का भी इतना ही महत्व है कि इतना पानी होना चाहिए तभी हमारे सारे सेल्स इतने अच्छे से काम कर पाते हैं। तो पानी के लिए, फायर एलिमेंट के लिए, ऑक्सीजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेस भी इतना ही महत्वपूर्ण है कि स्पेस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक चीज के अंदर वो स्पेस होना जरूरी है। एंड सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती है तो वो है हमारे मदर अर्थ, जो अर्थ एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर भी है। ये मदर अर्थ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये देखने जाए सारे एलिमेंट्स हमें मदर अर्थ ही देती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी धरती माँ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज मुझे ये शेल्टर दिया है, मुझे 2-3 घर जो मैं आज तक ले पाई हूँ, ये धरती माता की छोटी सी जमीन का हिस्सा जो मैं आज अपना बता सकती हूँ, बट वो है तो धरती माता का ही। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, so let's do our mirror work. Thank you. Thank you, Alipya, for being here today, this morning. I love you. I really, really love you. And I accept you the way you are and the ways you are not. You are perfectly healthy, fit and fine. You are getting more radiant, more stronger each and every moment of your life. And I feel so proud about it. Yes. You are perfectly healthy, fit and fine. You are a child of God. Yes, you deserve all the goodness and abundance in the universe. You deserve meaningful life. You deserve love. You deserve all the prosperity, wealth, and success. You are an achiever. You are successful and you are a winner. Yes, you are a winner. And I love you. You are a child of God. I love you and I accept you exactly the way you are. You are the greatest soul ever born on this planet. And I love you. I'm connected to my higher self and I listen to my intuition every day. I take action based on inspiration from within. I follow my inner guide and my inner wisdom. Always. And I listen to my intuition every moment of my life. I'm connected. I'm connected to the higher power and doing things for my highest good. I find intense joy in everything that I do. Yes, I find intense joy in everything I do. Everything in life is a blessing and I find passion in doing everything. I love and trust, and I trust the process of life. I trust the whole process of life. Everything that comes to me, all the challenges, they are always there to empower me, to upgrade me to the higher level. And I'm capable of handling all the challenges that come my way. My days are very smooth. I go through my day smoothly and effortlessly. And I choose happiness and I'm happy in each and every moment. I choose happiness. I choose joy. I choose to feel happy and to be happy all the time. Yes. I do things which makes me happy and I love
whatever I do, I love you, Olivia. I really, really, really love you. Okay, so let's do our book. तो आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे. कौन पढ़ना चाहिए? नहीं, हमने लास्ट इंग्लिश में पढ़ा था ना, आज हिंदी में पढ़ेंगे. So let's start our. हिंदी वाली बुक बंद हो गई. एक ही सेकंड, खोलती हूँ वापस. Just a second. सबने अपने अपना लिस्ट बनाया है. आई होप. एक और काम आप ऐसे कर सकते हो लिस्ट बनाने के लिए. खाली लिस्ट पूरता ही वो करना होता है कि आपको अभी जो नहीं पसंद है वो चीजें भी आप लिख के फिर उसके सामने आपको जो पसंद है वो चीजें लिख सकते हो. अंडरस्टैंड? लाइक अगर मुझे मान लो अभी आई डोंट वांट टू वेट समवेयर, तो उसके सामने मुझे क्या पसंद है कि कहीं पे भी जाऊं तो इजीली मुझे चीजें मिल जाए. तो ऐसा भी, इस तरह से भी लिस्ट बना सकते हो आप. जो नहीं पसंद है उसका पहले लिस्ट बना के उसके सामने एग्जैक्टली जो पसंद है उसका लिस्ट बनाना. जस्ट अ सेकंड, लेट मी बुक्स. सबको समझ में आया कैसे लिस्ट बना सकते हैं? यस. हाँ, डोंट वांट की जगह, मतलब आई डोंट वांट. अगर मान लो आज मुझे ठंडा खाना नहीं पसंद है, जस्ट एन एग्जांपल, तो उसके सामने मैं क्या लिखूंगी कि आई ऑलवेज लव हैविंग नाइस वार्म फूड, हॉट और वार्म, या जो भी है. तो वो इस तरह से आप डोंट वांट की लिस्ट बनाए तो आपको और पता चलेगा. मान लो आप नहीं चाहते हो कि मेरी मेड हमेशा लेट आए और काम अच्छे से नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते हो आप, तो उसके सामने क्या चाहते हो उसका लिस्ट बनाइए. राइट? सो दैट इज द थिंग दैट वी ऑल कैन डू. तो ये भी एक अच्छा तरीका है हमें जानने का कि हमें पसंद क्या है. ओके, सो लेट मी गो थ्रू दिस. तो हमने ये वाला तो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा. उसके बाद हम कीज ऑफ ग्रेटिट्यूड पे अभी कर रहे हैं. तो की ऑफ ग्रेटिट्यूड में भी हमने काफी हद तक पढ़ा है. अभी उनकी मम्मी का हम एग्जाम्पल देखेंगे कि उनकी मम्मी ने अपनी लाइफ को कैसे टर्न अराउंड किया. यानी हम ये कब की बात कर रहे हैं? यानी कि जब उनकी मम्मी पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी उसके पापा के जाने के बाद. एंड जिस दिन ये रोंडा बर्न को ये बुक मिलती है, जिस दिन, उसी टाइम पे क्यों इतनी अपसेट थी, मतलब उसी टाइम पे उसके मम्मी का फोन आया हुआ होता है कि पापा चले गए. तो शी इज नॉट लाइक, शी इज कंप्लीटली इन अ वेरी बैड काइंड ऑफ डिप्रेशन. और ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती है. एंड शी वाज लाइक कि अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. उसी टाइम पे उसकी डॉटर एकदम ऑल ऑफ अ सडन out of nowhere she comes and she gives this book to her, and everything changes from after that. So एक सेकंड, हमने आई थिंक ये हमने पढ़ा था उस दिन. तो नाउ कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है. यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि कृतज्ञता नहीं है और हम प्रेम करें. वो दोनों साथ साथ में ही चलते हैं. कृतज्ञता करोगे तो ही प्रेम कर पाओगे. तो ये एक ऐसी एक कुंजी है जो प्रेम के ताले को खोलने के लिए सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. और ये एक ब्रिज हमने देखा था कि ये कृतज्ञता ही एक ब्रिज है. आप सबको ये सारा पढ़ना है हिंदी में कि आई कैन गो फर्दर? हाँ जी, गो अहेड मैम. ओके ओके.
क्योंकि हमने वैसे इंग्लिश में बहुत अच्छे से ये सारी चीजें कवर की है। तो इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन की में आपकी ओर लौट कर आता है। यानी संबंधों में अगर हम कृतज्ञता करते हैं तो एक्चुअली लेट्स रीड फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इसे अभी मैं आजमा पढ़ूं? कर। हाँ जी, मैं पढ़ूं? हाँ प्रिया पढ़ो। कहाँ से अरे मैम? इंग्लिश में कौन सा है? इंग्लिश में कौन सा है ये? बिकॉज आई हैव इंग्लिश। इसे अभी आजमा कर देखे, वहां से पढ़िए। ठीक। और इंग्लिश का स्टार्ट किया। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, यही आसपास ही होगा, हमने कल पढ़ा, आई मीन परसों जो पढ़ा था वही सेम ही है। तो यस यस प्रिया, स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसे अभी आजमा कर देख। इसे अभी आजमाकर देख लें। किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उनसे प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उसकी ये सारी विशेषताएं बता दें जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वे व्यक्ति मौजूद नहीं है तब भी उसी तरह बताएं जैसे वह आपके साथ वहीं हो। उसे वे सारे कारण बता दें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को ये कहकर याद कर सकते हैं, वह समय याद है जब ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर मैम थोड़ा सा ऊपर होंगे। हाँ, लौट कर आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टाइन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी वह व्यक्ति है जो दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता था, दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टाइन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है? जीवन ने आइंस्टाइन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक व बाहरी जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। हाँ, तो कृतज्ञता कई गुना कर देती है। तो यहाँ पे एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि ये मेरा जीवन, अगर आज मैं इतने अच्छे से जी पा रही हूँ, अगर कभी कभी हमें लगता है ना कि मान लो किसी ने हमें कुछ दिया या किसी ने हमें हेल्प कर दी, तो हमें अंदर से होता है कि हम भी उनके लिए कुछ कर दे। हमें लगता है कि हम भी उनके लिए एटलीस्ट कुछ ऐसा करके उनका चुकता कर दे, उनको भुगतान कर दे किसी तरह, किसी अच्छी तरह से। हमें अंदर ही अंदर होता है कि नहीं, वी शुड पे बैक। तो सबसे अच्छा पे बैक है कृतज्ञता। अगर किसी ने भी आपके लिए कुछ किया है, हाँ भले मान लो शायद आप ऊपर से आप उनको चाहते हो कि हाँ चलो हम गिफ्ट लाके उनको दे दे, ये आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। जब स्पेशली कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें अंदर से ही होता है कि नहीं, हम उनको कुछ ना कुछ वापस करके दे दे, या उन्होंने हमें इतने अच्छे से फेवर किया तो हमें अंदर से होता है कि नहीं, उनको पे बैक कैसे करे कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की।
बट अगर हम हमारा पूरा जीवन देखेंगे तो हमने हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लिया है. आई विल म्यूट यू चंदन जी, इट्स टेकिंग सम नॉइज. या सबको म्यूट करती हूँ, जितने भी लोग अनम्यूट हैं. अगर आपको कुछ बोलना है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, बट बिफोर दैट जस्ट कीप म्यूटेड. ओके, सो यहाँ पे इतना हमेशा याद रखना है कि हमारे तो पूरे जीवन में कुछ ना कुछ तो हमने जरूर लिया है किसी ना किसी से. जैसे घर में होता है तो हमें लगता है कि नहीं, वो तो उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी जिम्मेदारी है वो करना. अगर माँ बाप ने पैदा किया तो लगता है नहीं, वो तो सब माँ बाप करते हैं. तो कितनी सारी चीजें ऐसी होगी जो हमने ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली. हमें लगा कि नहीं, बट हम अगर कोई अचानक से मान लो आपकी फ्रेंड ने आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ किया तो आपको लगता है नहीं नहीं, हम मुझे उनको उसको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, पे बैक करना चाहिए जिस तरह से उसने मेरी मदद की. ये होता है कि नहीं हमें, बट कई चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. कई सारी ऐसी चीजें होती है. यहाँ पे ये सारी चीजें बताने का एक ही मतलब है कि हमारी पूरी लाइफ, एक एक मिनट मुझे लगता है हमने किसी न किसी से कुछ न कुछ लिया हुआ होता है. और अगर आज हमें पे बैक करना है तो एक ही ये सबसे ज्यादा और सरल उपाय यही है कि हम जितना हो सके इतनी कृतज्ञता दे सामने सभी को, जिन जिन से हमने कुछ न कुछ लिया हुआ है. तो कृतज्ञता देना सबसे अधिक, जो बोलेंगे ना कि बहुत ही अच्छा एक्ट है. सबसे ज्यादा अगर कुछ हम दे पाएंगे किसी को भी, वो है कृतज्ञता. यानी उनकी तरफ बहुत ही अच्छे भाव भेजना. कृतज्ञता अगर हम किसी के लिए भी करते हैं तो अल्टीमेटली उसका मतलब क्या होता है कि हम गॉड की जो अच्छी एनर्जी है उनकी तरफ भेज रहे हैं. उससे अच्छा और कुछ भी क्या हो सकता है. यानी आप भले कितनी बड़ी से बड़ी गिफ्ट दे दो, बट ये जो कृतज्ञता की गिफ्ट है सबसे बड़ी गिफ्ट है किसी के भी लिए. किसी के भी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए, उनकी लाइफ में उनके सपने पूरे हो जाए, उनकी तरफ हम ये वाली एनर्जी भेजे, उससे अच्छा और क्या हो सकता है. तो जितना हो सके, जैसे ये सैकड़ों बार आइंस्टाइन अपने आप को याद दिलाता है. देखो, याद दिलाता हूं मैं खुद को. यानी हमें भी याद नहीं रहता, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को. बट हमें खुद को याद दिलाना होगा कि नहीं, मेरा आंतरिक यानी मेरा अंदरूनी इनर वाला जो वर्ल्ड है और बाहरी जीवन दोनों ही, आज मेरा इनर वर्ल्ड है और आउटर वर्ल्ड दोनों ही किसी न किसी जीवित और मृत दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर कर रहा है. आज एक एक चीज के लिए मैं किसी न किसी के ऊपर सीरियसली देखने जाऊं तो हम किसी न किसी चीज के लिए मोहताज ही है. हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पे होते तो. जैसे हम मैजिक बुक में पढ़ते हैं ना, एक रिश्ते का जो हमारा चैप्टर आता है उसमें हम पढ़ते हैं कि मान लो आप अगर अकेले होते, भले ही बहुत अच्छी स्किल होती है आपके पास, पर पूरे प्लानेट पे आप अकेले होते तो क्या आपको मजा आता जीने में. यानी हर एक चीज में हमें कितना कुछ दूसरे लोगों से मिला हुआ है, वो भले जीवित है या मृत है, बट हमारा बहुत सारा कुछ बहुत लोगों के ऊपर निर्भर करता है. तो ये हमें याद दिलाना होता है, हमें याद नहीं होता है. ये हमारी जो पैटर्न होती है वो कैसे होती है कि ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेनी, ऐसे हमारी पैटर्न्स बनी हुई है, कंडीशनिंग ऐसे हुई है. इसलिए हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है. दिन के अंदर जितनी बार हो सके, अगर मैं पानी पी रही, खाना खा रही हूँ, तो ये खाना भी मेरी प्लेट पे किसकी वजह से आ पाया कि फार्मर्स, इतने सारे जो फार्मर्स है जिन्होंने ये चुना खाना, मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाने के लिए, जिन्होंने चुना, चॉइस मेक की है ना उन्होंने, वो इतना नर्चर करते हैं वो सीड को, तब जाके कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हमें मिल पाते हैं. और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा पार्ट है वो भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गई है कि इंडिया में जो चीज है वो यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे वो चीज है दूसरी जगहों पे मिलने लगी है. तो ये सारा कितना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं. बट क्या हम होते हैं नहीं, क्योंकि हमें याद दिलाना होगा बार बार, हम भूल जाते हैं.
तो अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद को याद दिलाते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी ये करना है। और ये इसमें कोई, अगर आज देखते हैं तो ये सारे दुनिया के रहस्य उनके सामने क्यों उजागर हुए हैं, उसमें हमें अब समझ में आता है कि क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि वो हमेशा वो शक्ति के साथ जुड़े हुए होते थे, और शक्ति के साथ जुड़ने के लिए कृतज्ञता एक बहुत बड़ा ब्रिज है। तो लेट्स रीड फर्दर। चाहे वह कितनी भी जब आप अपने पास, हाँ जी, जब आप अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी हों, तो इसका परिणाम ये होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वो कितना ही कम हो, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों वाली नौकरी ना हो, तो आपको करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना देती है। यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो वो आपको धन्यवाद कहना ही काफी है। माइस्टर एकहार्ट, ईसाई लेखक और धर्मशास्त्री। कृतज्ञता तो पूरे जीवन में कुछ प्रे नहीं किया आपने, कोई चीज नहीं की, बट आपने बस कृतज्ञता कर दी, तो ये सबसे बड़ी एक प्रेयर है। लेट्स रीड फर्दर। कृतज्ञता 2 साधारण शब्दों आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इसे पूरे दिन दिल से महसूस करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतना ही ज्यादा प्रेम देंगे। आप अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं, और उनमें से एक हर एक में प्रेम दिया जाता है। पहला, जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे, अतीत। दूसरा, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे, वर्तमान। तीसरा, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहे जैसे वे आपको मिल चुका है, भविष्य। आपको जो मिला है तो और जो हमेशा ये मिल रहा याद रखना है, हमेशा ये याद रखना है कि कृतज्ञता हमेशा 3 तरीके से आपको करनी ही करनी है। पहले पास्ट के लिए शुक्राना, मान लो अभी आप अपने जीवन में कुछ चाहते भी है, तो शुक्राना हमेशा पहले पास्ट में से स्टार्ट होगा कि पास्ट में वो चीज आपको मिली है, जैसे भी जिस तरह से मिली है, उसके लिए पहले शुक्राना। फिर अभी वर्तमान में जो भी चल रहा है, करंटली आपको जो मिली है चीजें, उसी के जो आपको चाहते हैं फ्यूचर में, उसी के बारे में भी आप सेम चीज कर सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स जब हम फ्यूचर का शुक्राना करते हैं, उसका मतलब ही क्या है कि हम पूरी तरह से यूनिवर्स पे अपना पूरा फेथ डाल देते हैं कि वो हमें मिल चुका है, इसलिए हम उनको ऑलरेडी धन्यवाद दे रहे हैं। हम धन्यवाद अगर किसी को देते तो क्यों दे पाएंगे? कहीं ना कहीं पे हमें विश्वास है कि वो चीज हमें मिल गई है। मान लो कि अभी आप अपने बच्चे को भेज रहे हो कुछ, मे बी किसी आपके सामने कोई दुकान है, उसमें से चीनी या कुछ खरीदने के लिए भेज रहे हो, तो आप पहले से उसको थैंक यू बोल देते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि वो चीनी लेके आ ही जाने वाला है। वैसे है वो फ्यूचर, बट आपको ऑलरेडी उस पे विश्वास है कि वो अगर वो चीनी लेने गया है तो मोस्टली दुकानदार के पास अगर है तो वो चीनी लेके ही आएगा। तो आप पहले से ही उसको धन्यवाद देते हो। जब आप उसको काम देते हो तब भी आप थैंक यू बोल देते हो कि थैंक यू बच्चे ये करने के लिए। तो इसी तरह से यूनिवर्स के ऊपर भी हमें, अगर हम कुछ भी चीज चाहते हैं, अगर यूनिवर्स को बोलते हैं कि हाँ हमें ये देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले से ही हम अपना फेथ डाल देते कि अगर मैंने यूनिवर्स को कुछ भी, उनके पास कुछ भी अपनी रिक्वेस्ट रखी है, तो वो ऑलरेडी पूरी हो ही चुकी है। वो रखने के बाद तुरंत ही हमें उसका एक अलग ही तरह का विश्वास होता है अंदर से, और वही विश्वास के साथ हम कृतज्ञता करते। तो ये 3 टाइप की कृतज्ञता, यानी
gratitude for the past, gratitude for the present and gratitude for the future. ये तीनों चीज हमेशा किसी भी क्रिएशन प्रोसेस में आपको काम आएगी. आपको जो भी क्रिएट करना है इसमें हमेशा ये 3 प्रोसेस लगेगी. So let's read further. आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं. यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है. आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो वे चीजें कई गुना हो जाती हैं. साथ ही कृतज्ञता आपको आपकी मनचाही चीज भी दिला देती है. आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हो जैसे वह चीज आपको मिल चुकी हो. आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी. हाँ, क्या तो आप कल्पना, अगर हम ये 3 चीजों का जितनी भी कृतज्ञता करते हैं वो जितना मतलब जो भी हम फील करते हैं, यानी फीलिंग इज अ क्रिएशन प्रोसेस, राइट. हम आगे पढ़ते हुए ही आए हैं कि हमें अगर क्रिएशन के अंदर कुछ भी करना है तो 3 चीजें होती है जो हमें करनी होती है. इमेजिन, फील एंड रिसीव. ये 3 चीजें होती है. और फीलिंग, कृतज्ञता क्या होता है? फीलिंग्स के बिना कृतज्ञता हम नहीं कर सकते. और अगर हम कृतज्ञता बार बार करते हैं तो अपने आप फीलिंग जनरेट हो ही जाती है. तो इसीलिए ये आकर्षण के नियम के हिसाब से जब भी हम कृतज्ञता फील करते हैं वो हम ऐसी और चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो ये और रीइटरेट हो गया है यहाँ पे पॉइंट. सो कृतज्ञता फील करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो लेट्स रीड फर्दर. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम की आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है. एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेला रहता था और अवसाद से ग्रस्त था. वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी. एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया. सकारात्मक नजरिया अपनाकर वे अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा. शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए. वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए. लेकिन उसने हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा. वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा. 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया. अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था वह सब रहस्यमयी ढंग से बदल गई और अब वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता है. काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी. परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे. उसने अपना कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसा रहता है. परिस्थितियां चाहे जैसी हो उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है 10वीं ग्रेड के साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से. आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है. मोहम्मद साहब, इस्लाम के संस्थापक. यस, तो लेट्स रीड. यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा. यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते.
कृतज्ञता ना सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देगी, बल्कि ये नकारात्मक चीजों को खत्म भी करती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं, और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं, जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। हाँ, तो नहीं सिर्फ अपनी अच्छी चीजों को हमारी लाइफ में कृतज्ञता लाती है, बट वो जो नकारात्मक जो नेगेटिव चीजें होती है उसको भी धीरे 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 हमारे जीवन से खत्म कर देती है। तो कृतज्ञता प्रेम का पुल है, ये हमने कल भी पढ़ा था। ये वापस हिंदी में पढ़ने से और सब कुछ हमारे माइंड में और रीट्रेट हो जाता है, तो दैट्स व्हाई इट्स गुड। सो लेट्स रीड फर्दर। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे, तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। हेनरी डेविड थॉरो 1817-1862 अंतर्ज्ञान ज्ञानार्वादी लेखक। अंतर्ज्ञानवादी लेखक। अंतर्ज्ञानवादी लेखक। तो जब हम शांत होते हैं तो हमें हर चीज अपने आप अपने सामने खोजे होती है। अगर निराशा है तो वहां से अपने आप हमें सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं जब हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे। तो ये अंतर्ज्ञानवादी लेखक डेविड थोरो ने बोला था। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कृतज्ञता एक तरह का ब्रिज है हमें वो प्यार की शक्ति की तरफ पहुंचने के लिए। कृतज्ञता के बिना हम नहीं पहुंच सकते। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि अगर रिवर में ब्रिज नहीं है तो आप एक रिवर के पार से दूसरे पार तक नहीं जा सकोगे। वैसे ही कृतज्ञता का ये जो ब्रिज है उसको पार किए बिना हम वो शक्ति की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ अभी हम पढ़ेंगे कि कृतज्ञता की बदौलत उनकी मम्मी का यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लेट्स रीड। कृतज्ञता की बदौलत ही इधर है if we will be quiet and ready enough is what here? Ready for everything? रेडी यानी मुझे पता ही है कि मुझे सॉल्यूशन मिलेगा अगर मैं शांत हूँ। मतलब मैं प्रेम की शक्ति पे इतना विश्वास करती हूँ। मान लो कुछ चीज आ रही है बहुत नेगेटिव दिख रही है, बट मैं शांत हूँ अंदर से और पर्याप्त हूँ यानी रेडी हूँ सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ओके, थैंक यू। यस। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबरकर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली नजर में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें उनकी कमी बहुत खलती थी। लेकिन इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पति से उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी, वे उसके लिए कृतज्ञ थी। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज ये मिली कि वे अब यात्रा कर सकती है। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें की जो वह हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। देखो यहाँ पे दो चीज हम निकल के आ रही है। दो चीज क्या, एक तो पहले वो अपने हस्बैंड के लिए कृतज्ञ होने लगी इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ग्रीफ। ग्रीफ क्या है? बिल्कुल ही नेगेटिव भाव है, बहुत ज्यादा नकारात्मक भाव है ग्रीफ के। कोई चला गया है दुनिया से, उसके लिए आप बहुत दुखी रहते हो, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फीलिंग है।
उनकी माँ ने क्या किया, वो ग्रीफ में से कैसे भी निकल के बाहर कैसे आने लगी, कृतज्ञता के साथ। यानी अगर आप कृतज्ञता करते हो वहां पे कुछ भी नेगेटिव टिक नहीं सकेगा। यानी उन्होंने क्या किया कि ग्रीफ में जो वो रहती थी, डिप्रेस्ड रहने लगी थी, धीरे 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 शी स्टार्टेड काउंटिंग ब्लेसिंग्स। तो एक के बाद जब एक वो कृतज्ञता करती गई, अब क्या हुआ, ग्रीफ अपने आप ही उनकी लाइफ से चला गया। जैसे ही वो चला गया, उनको दिखने ये चीजें लगी कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिससे वो प्रेम करती है। यानी यहाँ पे पहले कृतज्ञता का ब्रिज काम कर रहा है और फिर वो प्रेम की जो शक्ति है वो भी काम कर रही है। प्रेम की शक्ति क्या, कि उनको जो चीजें करना पसंद थी, जो उनके हस्बैंड के साथ जब थी तो वो नहीं कर पाती थी, जैसे कि उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद था। यानी अगर हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल में क्या समझने की जरूरत है, जब हम कृतज्ञता से अपने अच्छे भाव में रहने लगते, अच्छी फीलिंग्स में रहने लगते, जो भी नेगेटिविटी है वो अपने आप खत्म होने लगती है। और फिर हम जैसे ही कृतज्ञता के अच्छे भाव में रहने लगते, हमें अपने आप ऐसी भी चीजें दिखने लगती है जिससे हम प्रेम करते हैं। अब तक वो चीज क्यों नहीं दिखती? आप में से कितने लोगों को पहले ये चीजें दिखती थी जिससे आप प्रेम करते हो? हार्डली। जब हम नेगेटिविटी में होते हैं तब हमें कुछ दिखता ही नहीं होता है कि हमें क्या पसंद है, हम क्या चीजों को और पसंद करते हैं, जो हमें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। हार्डली हमें पता होगा कि हम कौन सी चीजों से प्यार करते हैं। हार्डली। कुछ कुछ चीजें होगी जो हमें पता होगी, मोस्टली हमने अपने आप को कभी टटोला ही नहीं होगा वो प्यार करने के लिए। बट जैसे ही हम कृतज्ञता की ये जर्नी में आने लगते, नेगेटिव चीजों में से निकल के पॉजिटिव की तरफ जाने लगते, तब हमें स्पष्टता यानी क्लैरिटी के साथ दिखने लगता है कि हाँ, मुझे क्या पसंद है, कौन सी चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं प्रेम करती हूँ। तो उनके साथ भी सेम वही हुआ। जब उन्होंने कृतज्ञता, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वो कृतज्ञ रहने लगी के दशकों के तक, यानी पहले वो पास्ट में गई कि उनके पति के साथ जो भी उन्होंने दशकों के दशक बिताए थे, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें थी जिसके लिए वो कृतज्ञ थी। यानी अभी करंट में पति नहीं है, उसके ग्रीफ में जाने की बजाय पास्ट में जाके ऐसी चीजें ढूंढने लगी जिसके लिए वो कृतज्ञ है, अपने हस्बैंड के साथ के लिए, उनके हस्बैंड ने जो किया था उसके लिए। अभी क्या हो रहा है, अभी उसके हस्बैंड के लिए जब तक वो ग्रीफ और नेगेटिविटी में थी, तब तक क्या हो रहा होगा, अपने हस्बैंड भले वो नहीं है, उनकी तरफ भी वो कौन से भाव भेज रहे हैं, नेगेटिव, राइट। अब जब वो पास्ट में जाके अपने हस्बैंड के लिए कृतज्ञ होने लगी, अब वो कौन से भाव भेज रहे हैं अपने हस्बैंड की तरफ, बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक। तो दोनों में देखो कितना फर्क है। हमें लगता है कि हम किसी के लिए ग्रीव करेंगे तो पता नहीं, मतलब कुछ बदलेगा, यानी कुछ बदल जाएगा। ग्रीफ से कुछ नहीं बदलता, नेगेटिव फीलिंग से कभी कुछ भी नहीं बदल सकता। हमें ये भी लगता होता कि हाँ, मैं जितनी चिंता करूंगी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बट ऐसा आज तक नहीं हुआ। जितनी हमने चिंता की उतना ही वो और दलदल में हम घुसते गए, जबकि कृतज्ञता करने से हम वो सारे दलदल में से बाहर आ सकते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, पहले तो दशकों तक जो खुशी मिली उसके लिए कृतज्ञता की, फिर अभी भविष्य के लिए होने वाली चीजों में भी तलाश करने लगी। भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी वो करने लगी कि अब मैं क्या चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। तो यानी सबसे पहली चीज उनको यही मिली कि वो अब यात्रा कर सकती है, क्योंकि उनके हस्बैंड को इतना पसंद नहीं था ट्रैवलिंग करना, तो अब वो पूरी तरह से वो कर सकती है। यानी करंट में देखने जाए तो अभी वो कर नहीं रही है, बट वो अभी पिछले दशकों की कृतज्ञता कर रही है। अभी भविष्य में वो जो यात्रा कर पाएगी उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो रही है। यानी वो तीनों चीजों को अभी ले रही है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर।
तो अभी जैसे ही वो इतनी कृतज्ञ होने लगी, पॉजिटिविटी में रहने लगी, फिर धीरे 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 उन्होंने वो सारा जो सैर सपाटा उनको यानी ट्रैवलिंग जो करना था वो उन्होंने स्टार्ट किया करना, और खुश रहने लगी। तो हर एक चीज में हमेशा पॉजिटिविटी अगर लानी है तो उसका ब्रिज है कृतज्ञता। अगर आप कृतज्ञ हो किसी चीज के लिए, अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, और जैसे ही पॉजिटिविटी आएगी आपको स्पष्टता से, क्लैरिटी के साथ दिखने लगेगा कि आप कौन सी चीजों को पसंद करते हो, प्यार करते हो। सो लेट्स रीड फर्दर। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज से परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। हाँ, कृतज्ञता, तो कृतज्ञता करने से आप वो ब्रिज के ऊपर धीरे 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 चढ़ के प्यार की तरफ जाने लगते हैं। बट कृतज्ञता हमें कोई भी नकारात्मक चीज में से निकाल, यानी मान लो कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आती है, एक के बाद एक कृतज्ञता के मतलब वहां पे काउंट करने लग जाओ अपनी ब्लेसिंग को, भले ही वो परिस्थिति के रिलेटेड ना हो। उस टाइम पे कुछ जो नेगेटिव आया है उसमें शायद आप ना ढूंढ पाओ कुछ भी पॉजिटिव, बट आप कुछ किसी और चीज के लिए उस टाइम पे कृतज्ञ हो जाओ, धीरे 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 आप वो नेगेटिविटी में से बाहर आ जाएंगे। यानी मान लो नेगेटिव परिस्थिति है, कुछ आया है बाहर, एग्जाम्पल ले लेते कि अचानक से आप कहीं पे सड़क पे जा रहे हो और आपकी कार बंद हो गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते, आपको कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए पहुंचना था, कार खराब हो गई या कार बंद हो गई। अभी नेगेटिविटी आ रही है कि मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, कार बंद हो गई है, पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है, ये वो जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है। चलो कार के रिलेटेड आपको वहां पे पॉजिटिविटी नहीं आ रही है उस टाइम पे, बट आप किसी और एक के बाद एक चीजों को कृतज्ञता के उसमें आप गिनने लगोगे, धीरे 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 आप वो परिस्थिति में से आपको रास्ता भी दिखने लगेगा। तो यानी कि चलो कार के रिलेटेड मैं कृतज्ञ नहीं हूं, बट मैं कौन सी ऐसी चीजों के लिए उस टाइम पे कृतज्ञ हो सकती हूँ कि मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, मेरे पास घर है रहने के लिए, मेरे पास पानी, हमेशा क्लीन वाटर मेरे घर में आता है। तो ये सारी चीजें एक के बाद आप गिनने लगोगे, अपने आप आपकी जो भावना होगी धीरे धीरे जो नेगेटिव भावनाएं हैं उससे बदल के पॉजिटिविटी में जाने लगेगी, और धीरे 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 जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उसमें से भी आप इजीली वो प्रेम के पुल में से निकल के प्रेम की शक्ति का दोहन करने लगोगे। और जब भी हम प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा है कि वो प्रेम की शक्ति के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। यानी वो कार में से निकलना, वो कार की प्रॉब्लम में से, नेगेटिविटी में से निकल के मतलब निकलना, वो तो इजी है प्रेम की शक्ति के लिए। प्रेम की शक्ति तो कुछ भी कर सकती है। तो जैसे ही वो प्रेम की शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, अपने आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिखने लगेंगे। तो बस वही करना है उसके साथ। जैसे ही नेगेटिविटी, जैसे अभी मान लो कोई चीज है, किसी के साथ का रिश्ता है जो आपको बार बार अपने अंदर दुखी कर रहा है, वो रिश्ता है या जो भी है, आपके अंदर बार बार कुछ कुछ नेगेटिविटी ला रहा है, अभी वहां पे आपको बस एक ही काम करना है, अपने आप को बार बार कृतज्ञता में लेके जाना है वही संबंध के लिए। मान लो आज उसमें बहुत सारी खराबी हो सकती है वो संबंध के अंदर, बट ऐसी कोई तो चीज जरूर होगी वो रिश्ते के अंदर जो आप जिसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और फिर धीरे 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 वही
आपको जो भी अभी जो परिस्थिति होगी उसमें से आपको निकालेगी। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जोवेट ने ये बोला था, यानी कि एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, ये सब कुछ है कृतज्ञता। अगर इस पे हम पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं, हमारी लाइफ अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ये जो प्रेस्बिटेरियन उपदेशक और लेखक ने ये चीज बोली थी 1864 से 1923 he was here. So let's read. And Priya, before I forget, I want to tell you, you're reading so beautifully. Thank you for reading today. Thank you so much. मैम मैं इंग्लिश समझ के पढ़ रही थी, हिंदी का थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन पढ़ा गया आज। नहीं, बहुत ही ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि हिंदी, आप हिंदी के साथ एकाकार हो, यानी एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो हिंदी। थैंक यू, So थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Very good reading, Priya. थैंक यू सो मच चंदन जी। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने के लिए अच्छी जगह मिले, जब रेडियो पर आपका प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले, तो धन्यवाद दें। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। आपकी आंखें जो देखती हैं, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है, और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दें। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप चलते हैं, उन हाथों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दें जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें। आपके मानव मस्तिष्क के प्रबल समर्थ के लिए धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं अपने घर, अपने परिवार। एक सेकंड। तो यहाँ पे एक एक चीज के लिए हम धन्यवाद हो सकते हैं। जो भी चीजें हमारे सामने आती है सभी के लिए, अपनी बॉडी में ही देख लो कितनी मार्वेलस चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब कभी भी आप कहीं पे भी कुछ भी कई जगह पे ऐसे ही वेट कर रहे हो या कहीं पे भी आप खड़े हो, कुछ और करने के लिए नहीं है, तो बस स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स कि मेरे ये दोनों पैर से मैं इतना अच्छा चल सकती हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मेरी ये जो 5 सेंसेस है, मैं बोल पाती हूँ, वो सब के लिए। कितनी सारी चीजें हैं जो पूरे दिन में हम बस कृतज्ञ 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 हो सकते हैं। पूरे दिन के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम कृतज्ञता मतलब महसूस कर सकते हैं। जितना आप फील करोगे, जितना आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहोगे, इतना ही आप और अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ लव। और कृतज्ञता ही वो लव की तरफ जाने का ब्रिज है। तो जब कभी भी सारी चीजों के लिए, कंप्यूटर यूज करते हो उसके लिए धन्यवाद, अगर आप अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद, हम अपने ब्रेन का कितना इस्तेमाल करते हैं पूरे दिन में, तो वो ब्रेन के लिए धन्यवाद। सारी चीजों के लिए जितना हो सके इतना धन्यवाद देते ही जाना है पूरे दिन में, कि हमारे पास इतनी सारी और इतने अपने आप को इतना बिजी रखना है कृतज्ञता में
कि हम कुछ नकारात्मक चीजों को इतना ध्यान ही ना दे, इतनी अपनी एनर्जी ही ना दे। तो ये एक प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस हमें इनकलकेट करनी होती है जितनी हो सके, बार 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 बार। सो लेट्स रीड फर्दर। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यस, यातायात तो मटेरियल चीजें तो हो गई, चलो मटेरियल चीजों के लिए तो आपको कृतज्ञ होना ही है जितना भी आपकी लाइफ में है। बट ये सबसे बड़ी बड़ी चीजें जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो, जैसे कृतज्ञ इनिशियली आपको वो कनेक्शन नहीं फील होता, बट जब आप बार 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 करते जाते हो, एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड होता है कि वो आपको कुछ भी दिला सकता है। ये जो पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना, अगर हम फील कर पाते हैं उनके साथ वो कनेक्शन, तब तो लाइफ और गहराई से बहुत ही सुंदर होती जाती है। तो ये सारी चीजों के लिए जितना हो सके इतना एक हैबिट बनानी है, प्रैक्टिस में लाना है कृतज्ञता। लेट्स रीड फर्दर। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करती हैं। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताजा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि आपके बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की पटरियां बिछाई। उन सभी को धन्यवाद दें। और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो संभव ही नहीं है जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और जो पूरे संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाती हैं। उन सभी को धन्यवाद दें। हाँ, तो आम जीवन हर एक चीज के लिए कितनी सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि हमारा पूरा जीवन कम होगा ये सारी चीजों के लिए कृतज्ञता करते करते। जैसे कल मैं, because we didn't have a session, so I just woke up around sunrise time. उसी टाइम पे फिर अपनी चाय, अपना जो भी कुछ ब्रेकफास्ट लेके मैं बाहर बैठ गई नेचर के साथ। उसी टाइम पे बस सनराइज होने का थोड़ा ही टाइम हुआ होगा उस टाइम पे। तो जैसे ओस होती है नीचे ग्रास के ऊपर, कितनी सारी चीजें थी जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो रही थी। अपना अपना इतनी खुशी के साथ चाय वगैरह पी रही हूँ बाहर बैठ के। और फिर उसी टाइम पे मैं देखती हूँ यूपीएस के 3 से 4 विमान एक के बाद एक जा रहे हैं। मैं अंदर से सोच रही हूँ कि कितनी लाइफ हमारी आसान हो चुकी है। आज हमें कहीं पे भी कुछ भी चीज भेजनी होती है तो ये सारे एयरप्लेन्स के अंदर वो चीजें मिनटों के अंदर पहुंच जाती है। यानी एयरप्लेन्स किस दूरी को तय कर सकते हैं, राइट? 500 किलोमीटर पर आवर ऐसी दूरी को तय कर सकते हैं। यानी धरती पे कहीं से भी कुछ भी चीजें हमें भेजनी होती है, एकदम आसानी से हम एयरप्लेन्स के अंदर भेज सकते हैं। वो मिनटों में, घड़ियों में मिल जाती है वो चीज। तो ये कितनी बड़ी नियामत है हम सबके लिए, कितनी बड़ी नियामत है। तो हर एक चीज के लिए कितना जितना हो सके कृतज्ञता करनी है। वो पानी के लिए, धरती के लिए, आकाश के लिए, और जो भी चीजें आपको हमेशा दिखती है। इतना भी हमें मान के चलना है कि अगर कोई चीज मेरे सामने आ रही है बार बार,
तो कहीं ना कहीं पे मेरा कृतज्ञता का देन भी है उसके ऊपर, जो मुझे अपने कृतज्ञता करके वो निभाना होता है। तो जो भी आता है उसको, जो भी यूनिवर्स हमें देता है, वो एक एक चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना है, ताकि हम अपनी लाइफ में वो चीजों को आकर्षित कर पाए। और इसलिए हम नहीं देते कि हम अपनी लाइफ में आकर्षित कर पाए, बट हम दिल से वो सारी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। यानी कहीं पे भी आप जा रहे हो, आपके सामने जो भी चीजें आ रही है, आपको बस उसके लिए कृतज्ञता करनी है। तो लेट्स रीड फर्दर। आम जीवन में हमें शायद ही कभी ये एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। डिट्रिक वैनहोफर 1906 to 1945, लुथेरियन पादरी। हाँ, तो ये हमें एहसास ही नहीं होता है, शायद ही कभी एहसास होता है कि जो हम देते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें मिलता है। एक्चुअली यस, इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। कितना हमने दिया होगा आज तक? हार्डली। बट हमें मिलता कितना कुछ है बचपन से लेके आज तक। हमने सामने क्या दिया है? कुछ ज्यादा दिया नहीं होगा, बट हमें मिलता तो रहता ही है, कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। कोई हमारे लिए ये कर जाता है, कोई ने हमारे लिए सड़क ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कोई ने इतने अच्छे एयरप्लेन्स बनाए हुए हैं, किसी न किसी कोई ना कोई सर्विसेज में कोई काम कर रहा है, हमें वो सर्विस हमेशा मिलती जा रही है। हर एक चीज में कितना हम लेते रहते हैं, कितना हम लेते रहते हैं। एक एक हमारे लाइफ के पहलुओं को देखेंगे तो कितना हमें मिलता ही रहता है, कंटिन्यूअसली मिलता जाता है। उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं देते जो हमें मिलता है। बट हाँ, कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। यानी अगर पे बैक करना है किसी भी चीज के लिए, कृतज्ञता सबसे अच्छी नियामत चीज है जो हम किसी को भी दे सकते हैं। जो कोई हमारे लिए कुछ भी करता है, बस उसके लिए हम जितना हो सके उसकी तरफ कृतज्ञता के भाव दे, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भेजे। उससे ज्यादा नियामत और कुछ नहीं हो सकती उनके लिए भी। तो लेट्स रीड फर्दर। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन रात इसका अभ्यास करें। ये याद रखें कि आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। हाँ, जब आपका यानी स्वास्थ्य, हम ये देखते आए हैं कि हर एक चीजों को हमारे अपनी तरफ लाने के लिए हमें हमेशा प्रेम देना है। और प्रेम देने के लिए क्या, जितना हम कृतज्ञ होंगे अपने आप ही हम ऐसी अच्छी वाली फीलिंग्स में रहने लगते हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो जितना हम कृतज्ञ होते हैं इतना ही हम प्रेम देने लगते हैं। अगर मैं कल यूपीएस के एयरप्लेन के बारे में सोच के कृतज्ञ हो रही हूँ, तो मैं अपने आप वो चीजों को भी प्रेम देती जा रही हूँ कि आज कितनी बड़ी नियामत है कि एक सिटी से दूसरे सिटी तक अगर कुछ भेजना है, कुछ चीजें हैं जो हमें भेजनी है वहां पे, तो वो मिनटों में, घड़ियों में जा सकती है, घंटों में जा सकती है। ये यूपीएस यानी ये जो जितनी भी कंपनीज है जो ये सारी चीजों को लेके आई है, इतना इंस्टेंटली वो सारा काम होता है हमारा। तो अगर वो उस सबके लिए मैं कृतज्ञ हो रही हूँ, तो मैं अपने आप ही उसको प्रेम भी दे रही हूँ। कौन सी चीजों को? कि हाँ, चीजें बहुत आसानी से एक पार्ट में से वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में भेजी जा सकती है, बहुत ही इजीली। जितना मैं उसको प्रेम दूंगी इतना ही वो ऐसी और चीजों को मैं अपनी लाइफ में अपने आप ही आकर्षित करूंगी। यानी मुझे सोचना नहीं पड़ता है, मैं बस इस प्रेम देती जाती हूँ, प्रेम देती जाती हूँ। जिन चीजों के लिए मैं कृतज्ञ होंगी उसको अपने आप में प्रेम देती जा रही हूँ। मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मैं प्रेम दे रही हूँ कि नहीं, वो अपने आप होता है। सो लेट्स रीड फर्दर। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने चाहिए। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं?
या आपको चोट लग जाती है? क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब ये पूरी नहीं होती या अच्छी तरह से नहीं आती? हाँ, तो क्या आप हमारी अपनी बॉडी जब अच्छा काम कर रही है, जितना हम अपने आप को कृतज्ञता में रखते हैं, मैं देखती हूँ कि मेरी बॉडी में कुछ भी अगर हुआ है, बट मैं अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में बनाए रखती हूँ, वो जो भी चीजें आती है अपने आप चली जाती है। हाई फ्रिक्वेंसी में कुछ भी नेगेटिव टिक ही नहीं सकता, ना बॉडी में ना माइंड में। यानी हाई फ्रिक्वेंसी यानी हमेशा फील गुड वाले उसमें रहना, वही तो है जो प्रेम की शक्ति है। फीलिंग गुड, वही प्रेम की शक्ति है। जितना आप अच्छा महसूस करते हैं, आपके स्वास्थ्य पर, सभी चीजों के लिए आप कृतज्ञ होते हो। अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखना मतलब क्या? कृतज्ञता, प्यार की शक्ति, जॉयफुल रहना। तो वो सारी जितना उसमें रहते हैं, अपने आप हमारे अंदर, बॉडी के अंदर भी कुछ अगर नकारात्मक है, वो अपने आप हील हो जाता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम बीमार है तभी हमें कृतज्ञता याद आती है, कि तभी हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। बट हमेशा अगर हम कृतज्ञ होते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने अच्छी नींद आने के लिए, बहुत कुछ चीजें हैं जो जिसके लिए हम पूरे दिन में कृतज्ञ हो सकते हैं। हमारा जीवन इसी के बारे में है। जितना हम कृतज्ञ होंगे, इतना ही हम प्रेम दे पाएंगे। सो लेट्स रीड फर्दर। क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने संबंधों के बारे में तभी सोचते हैं जब उनमें समस्याएं आती हैं? क्या हाँ, आप तो किसी हमारे रिलेशंस में भी देख लीजिए, अगर आज हमारी ये पूरी फैमिली है, तो कितना कुछ हम मतलब मान लो हमारे हस्बैंड है या हमारे माँ बाप है, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो अगर आज संबंध में कुछ नेगेटिविटी आ भी रही है, बट वहीं पे अगर आप कृतज्ञ हो जाएंगे, जितना हो सके वो देखते जाइए कि कितना कुछ मैंने उनसे लिया है, कितना कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है। ये कोई उनका यानी ये कोई हम लिखा के नहीं आएंगे कि नहीं उनको इतना करना ही पड़ेगा हमारे लिए। यानी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो नहीं था, या हमारे पास कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि नहीं हम शादी करके आए हैं तो ये हमारा इतना करेंगे ही करेंगे। नहीं, तो भी उन्होंने किया है। हमारा फर्ज बनता है कि वो संबंधों के बारे में जितना हो सके इतना कृतज्ञ हो। भले ही मधुर संबंध अभी नहीं भी होंगे तो मधुर हो जाएंगे, बट जो जो चीजें हमने किसी से भी ली है उसके बारे में जितना हो सके कृतज्ञ होना, वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। सो लेट्स रीड फर्दर। क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब को के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब ये चली जाती है या फ्यूज उड़ जाता है? तो यानी क्या आप एक एक चीज, छोटी सी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, यानी इलेक्ट्रिसिटी कितनी बड़ी नियामत है हमारी लाइफ में, तो उसके बारे में तभी सोचते हैं जब लाइट चली, फ्यूज उड़ जाता है, या हमेशा उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? यानी अभी ये बल्ब चल रहा है मेरे ये रूम के अंदर, भले ही पूरा अंधेरा, डार्कनेस है आउटसाइड के अंदर, बट ये बल्ब अभी किस लिए जल पा रहा है? तो कि कितने सारे लोगों ने ये इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, कितने सारे लोग इन्वॉल्व है उसके अंदर, कि जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी आज मेरे घर पे पहुंच पा रही है। कितने वायर्स बिछाए होंगे पूरे शहर के अंदर, कितने टावर्स लगे हुए हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी हर घर पहुंच रही है। और आज ये बल्ब को मैं ऑन करके यहाँ पे आपके साथ ये सेशन कर पा रही हूँ, जस्ट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दोज पीपल, ऑल दोज स्टफ, जो मटेरियल चीजें भी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स हो गए, वायर्स हो गए, ये सारी चीजें आज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर पे आ रही है। ये स्विचेस है, कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है
जिसकी वजह से आज ये बल्ब चल रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ ये कर पा रही हूँ। ये मेरा लैपटॉप भी अभी चार्ज इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे। जरा मैं सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ कैसी होती। जस्ट सोचते ही, यानी कितनी बड़ी नियामत है इलेक्ट्रिसिटी हम सबके लिए, कितनी बड़ी नियामत है। आज हमारा फोन में कभी बैटरी नहीं होती तो हम कैसे ऐसे एकदम वो हो जाते हैं, हड़बड़ी मच जाती है हमारे अंदर कि कब उसको चार्ज कर ले। सोचो वो इलेक्ट्रिसिटी कितना बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का। हर एक उपकरण हमारी लाइफ में, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आज बाहर अगर गर्मी है तो आज अंदर एसी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर बाहर बहुत ज्यादा कोल्ड है, विंटर है, स्नो गिर रही है बाहर, हीटिंग चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। कितना कुछ हमारी लाइफ आसान हो गई है ये एक चीज की वजह से। खाली बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी लाइफ में कितने सारे एरियाज सॉर्ट आउट हो चुके हैं, मतलब सॉर्टेड है कितने सारे एरियाज। अगर उसके यानी इसी को बोलते हैं हम जब वाइड जाना और डीप जाना, यानी एक इलेक्ट्रिसिटी को लेके हम कितना वाइड जा सकते हैं, कितना डीप जा सकते हैं कृतज्ञता के अंदर। कितनी सारी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वजह से हमारे पास है, जिसके लिए हम इतना डीप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें जो आज तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ये आ पाई है, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार है, उसके लिए जिन लोगों ने काम किया है, उसके लिए यानी वो वाइडनेस में जाना, वो कृतज्ञता के विथ में जाना, उसके डेप्थ में जाना, यानी कृतज्ञ होने के लिए भी कोई सीमाएं नहीं है। हम जितना हो सके इतना डीप जा सकते हैं कृतज्ञता के अंदर। और यही है वो ब्रिज जो हमें वो प्यार की शक्ति के साथ जोड़ता है। यानी एक चीज को लेके हम कितने कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी अगर यही एग्जाम्पल मैं वापस लूं बिजली का, कितना कुछ है जो बिजली से अभी हो रहा है लाइफ में। कारें बिजली से चल रही है, हर एक 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 उपकरण बिजली से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी, यानी अगर मैं अपने घर में अभी देखने जाऊं, गराज डोर ओपन या क्लोज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। हम टीवी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देख पा रहे हैं, हमारे घर में फ्रिज, हमारे घर में डिश वॉशर, हमारे घर में ये इवन हमारा तो गैस भी इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा गैस भी नहीं चल पाएगा। घर में पानी भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रहा है। हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। यानी कितनी बड़ी नियामत है ये इलेक्ट्रिसिटी हम सबके लिए। हार्डली हम उसके लिए कृतज्ञ होते होंगे। आज मैं खुद अभी एहसास कर पा रही हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स डिड आई डू। हाँ, वैसे जब करने बैठती हूँ तो कई बार कर लिया होगा, बट अगर मैं अभी रिसेंटली अगर सोचने जाऊं तो मुझे नहीं याद है कि मैं बिजली के लिए कृतज्ञ हुई हूँ। मुझे अब एहसास हो रहा है आज कि ये कितनी बड़ी नियामत है जिसके लिए मैं भूल जाती हूँ कृतज्ञ होना। अलिफिया, यस, जो तुम हमें इतना अच्छा नॉलेज दे रही हो वो भी बिजली के बिना पॉसिबल नहीं है। हाँ, यस, एवरीथिंग जो भी हमें मिल रहा है, कितनी सारी चीजें हैं जो ये बिजली के बिना तो संभव ही नहीं है। ये इंटरनेट भी आज इसीलिए अभी आ रहा है ताकि बिजली है हम सबके पास। इंटरनेट को हम यूज ही नहीं कर पाएंगे अगर बिजली नहीं है। तो यानी सीरियसली मुझे अभी एकदम से एहसास हो रहा है कि नो, आई नीड टू गेट अ पेन एंड पेपर एंड रियली नीड टू स्टार्ट राइटिंग डाउन कि कितनी सारी चीजों में मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ।
पूरे डेप्थ में जाके मुझे उसके लिए कृतज्ञ होना है. ये मे बी दिस इज अ क्यू फॉर मी फ्रॉम द यूनिवर्स that I need to be grateful for electricity in the depth of it. So yes, I think let's conclude our session over here. वापस हम कल कृतज्ञता के ये पेज पूरा कर लीजिए ना, हो जाएगा. फिर खेल की कुंजी है. अच्छा, कृतज्ञता की कुंजी पूरा हो जाएगा. विदाउट बट वैसे भी हम कल इंग्लिश में वापस पढ़ेंगे कृतज्ञता को. हम और डेप्थ में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ना ही है. ये एक चैप्टर है जो उसको ऐसे हम जाने नहीं दे सकते. हाँ जी. जो मैजिक बुक ने हम सबको जो दिया है, ये एक चैप्टर में बहुत कुछ है जो हम एटलीस्ट वो रिवाइज कर सकते हैं, जो मैजिक बुक हमें सिखाती है. सो हाँ, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे संगीता. मैंने कहा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ ही रुक जाएगी. हाँ, कोई मोमेंट ही नहीं रहेगा. राइट. बहुत कुछ है जिसके बिना लाइफ थमी जाएगी. बट उसके लिए क्या हम सीरियसली कृतज्ञ होते हैं अपने जीवन में? हम ऐसी चीजों में लगे रहते हैं, फ्यूटाइल होती है कभी कभी चीजें, जबकि कृतज्ञता हमारे लाइफ में कितनी बड़ी चीज है. कृतज्ञता यानी देना, जो आइंस्टाइन करते थे, अपने आप को याद दिलाते थे हर दिन. तो कृतज्ञता करना वो हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत की चीज है. इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा अगर हमारी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होना, जो हमें मिलती ही आई है और मिलती जा रही है. सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज हमारे लाइफ में ये है कि कृतज्ञता करना. और पूरी लाइफ में कोई प्रेयर नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बट अगर आप दिल से किस चीज के लिए कृतज्ञ हो, सबसे ज्यादा मतलब वो सबको पूर्ण करती है, परिपूर्ण कर देती है. वो एक प्रेयर कृतज्ञता की, दिल से की हुई, कुछ करने की जरूरत नहीं, वही वो शक्ति के साथ हमें जोड़ती है. तो कृतज्ञता यानी जो मैजिक बुक जो हमारी लाइफ में आई है, उससे बड़ी कृतज्ञता और क्या हो सकती है अगर देखने जाए तो. सो what टाइम इट इज? इट्स 6:36. तो कल ही पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हम वापस वैसे भी रिवाइज करने वाले. अभी किसी को ये चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन? थैंक यू मैम. कि कोई भी क्वेश्चन है? मैंने आई वाज जस्ट चेकिंग द चैट बॉक्स. तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस होल चैप्टर? आई एम प्रीटी श्योर किसी को नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि सब यहाँ पे कुछ ना कुछ मैजिक बुक करके ही आए हैं. तो बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. आज आपका ग्रैटिट्यूड वाज एग्जैक्टली मैचिंग विद आवर लेसन मैम. यस, वो मैंने फिर बाद में मैंने भी नोट किया कि कितना ये अद्भुत तरीके से जो पैर, हाथ, हर चीज का आपने ग्रैटिट्यूड करवाया, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था किताब में. या इवन आई डिडंट नो दैट वाज कमिंग. फ्लूइड भी जो हमारी जॉइंट्स के बीच में है, उसका भी आपने ग्रैटिट्यूड किया. मतलब सो डेप्थ की, मतलब एक एक चीज आपने उसको इन्वॉल्व किया था आज. यस, यानी कितनी सारी चीजें हैं सीरियसली देखने जाए जिनके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं. पूरे दिन, पूरे जीवन, कितनी सारी नियामतें हैं हमारी लाइफ में जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं. और जैसे ही कृतज्ञ होते हैं, अंदर एक इतनी अच्छी फीलिंग आती है, वो प्यार की फीलिंग अपने आप ही अंदर जनरेट हो जाती है जब दिल से किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं. तो ये बहुत बड़ी नियामत. I really like that line कि हेयर के लिए किसी ना किसी को थोड़ा सा वो होता है. सच में हेयर इज लाइक आवर प्राइड. यानी हेयर मैं देखती हूँ कभी कभी, जब मेरे हेयर वेट होते हैं तो अपने आप को जब मैं आईने में देखती हूँ, तो तब मुझे एहसास होता है कि मेरे बाल मुझे कितना सुंदर बनाते हैं हमेशा. Exactly. कितना सुंदर बनाते हैं, कितना मैं कम हम उसको कृतज्ञ नहीं. मैं तो अपने हेयर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ. मुझे लगता है इसी वजह से वो अभी तक इतने अच्छे, मतलब वॉल्यूम भी इतना अच्छा है,
अगर झड़ते भी है तो उसके लिए मैं इतनी कृतज्ञ होती हूँ अपने बाल के लिए। तो झड़ते तो भी इससे कोई वॉल्यूम में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हाँ, उसकी वजह से कृतज्ञ, जो जो चीज में हम कृतज्ञ होते हैं तो वो चीजें अपने आप ही आप देखोगे कि भले, यानी कृतज्ञता सीखा मैंने अभी अभी है 2 सालों से, बट पहले से ही मैं अपने बालों के लिए हमेशा बहुत सेटिस्फाइड और अंदर से ही हमेशा खुश रहती थी बालों के लिए। तो आज मैं देख भी पा रही हूँ कि मैं, भले मेरी जो भी एज हुई होगी, बचपन से लेके आज तक बाल एक मेरी अच्छी एक पहचान बने हुए हैं, क्योंकि हमेशा मैं उसके लिए कृतज्ञ होती हूँ पहले से ही। तो जो जो चीज के लिए हम कृतज्ञ है वो चीजें और बढ़ के हमारे पास वापस आती है। यस, निशा जी बोल रहे कि यस, आई एम ऑल्सो लव्ड माई हेयर। वेरी नाइस, हाउ नाइस, दे आर स्टिल लाइक दैट। यस यस। तो जितना हम कृतज्ञ होते हैं अपने, और कभी कभी हम ही कंप्लेन भी करने लग जाते हैं। कभी कभी ये भी मैंने देखा हुआ है, जब मैं कंप्लेन करती हूँ तो मेरे बाल अपने आप ही रफ होने लगते हैं, अपने आप ही झड़ने ज्यादा लगते हैं, वो भी मैंने देखा हुआ है। तो यस, दोनों ही चीजें हम अपनी लाइफ में पूरा करते ही जाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस। जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं वो अपने आप बढ़ने लगती है हमारी लाइफ में। तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और शेयरिंग? अंजलि जी के बारे में कहना है, पता नहीं वो कितना खाना बना रही है, ऐसा लग रहा है जाके हेल्प कर दूं उनकी, वो अकेले काम कर रही है। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट पे हैं। कल तीज है ना, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, अकेली हूँ तो बहुत चीज बनाना रहता है। ठेकुआ है, पिरकिया है, पापड़ है, पिरकिया का वैरायटीज है, फिर वो टाइम मिलता नहीं है। तो मैं लगी हुई, तो सोची कि आज कर ही लूं, पूरा खत्म बैठूंगी, सुबह से लगी हुई हूँ। और आपकी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। बड़ी प्यारी आपकी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। लवली कलर। 24 आवर मेहंदी दिखाइए अंजलि जी। मेरे बच्चों के स्कूल में से फोन आ रहा है, 21 सेकंड, मैं म्यूट करती हूँ अपने आप को। अंजलि जी मेहंदी दिखाइए। अंजलि जी आपकी मेहंदी बताइए। नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। सही दिख रही है हमको। हाँ, आज ही सुबह मॉर्निंग में लगाई, उसके बाद ये बनाना था कि कल फास्टिंग रहेगा तो किचन में लगना मुश्किल हो जाएगा, और घर में कोई है नहीं, अकेली हूँ तो सब करना पड़ता है। नहीं, आप इतना काम करें तो हमें लगा हम आके आपकी हेल्प कर दें। एकदम आइए ना, वेलकम है, वेलकम। अंजलि जी इमेजिन कीजिए हम सबके हाथ आपको लग रहे हैं। हम लोग हेल्प से ज्यादा खाने शुरू कर देंगे। खाना शुरू कर देंगे, हमने कहा हेल्प से ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। कल कौन सी बड़ी तीज है या छोटी तीज है? नहीं नहीं, ये तो कोई और तीज है। हम आते हैं मनाने तीज आपके साथ, हम लोगों का भी बना दीजिए। बिल्कुल बन रहा है मैडम, देखिए बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि कम बनाएंगे, बहुत बनाएंगे, देखिए दिखाते। थैंक यू, थैंक यू। ये वाओ वाओ, अरे वाह, ममता जी को मत दिखाइए, उनका फास्ट चल रहा है। इंस्पिरेशनल अंजलि जी इस तरह से सब कुछ अकेले करना रहता है, इसलिए टाइम लगता है। हाँ, सब लास्टिंग क्लास नहीं मिस करेंगे, सुन तो लेंगे ही, इसलिए सब सुन रही थी। हाँ, हाउ नाइस, हाउ नाइस, कितना कुछ आप करते हो, आपसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कल पानी भी नहीं पीना, इसलिए ज्यादा दिक्कत है। अच्छा अच्छा, हाउ नाइस, हाउ नाइस। चलो चलो, आप सबकी तीज बहुत अच्छी हो, आप सब बहुत एंजॉय करो अपना जो भी है। Thank you, love, light, and blessing to all of you. Like you, respect you, man. Love, light, abundance to all of you. Thank you, Alifa ji. Thank you, Madhu ji. Thank you, each and every one of you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Love you. Bye.